हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री एनसीईआरटी सीबीएसई नोमैथिकल एम्पायर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 11वीं इतिहास का जो है अध्ययन अवार साम्राज्य, और ये एनसीईआरटी पे आधारित है, जो कि 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन पे एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारा यहाँ क्वेश्चन जो हम करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये और भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन को समझिए, देखिए और विचार कीजिए। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, नोमैथिकल एम्पायर। दिस इज क्लास 11 हिस्ट्री। दैट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, but next question arrive here. Write a short note on Yum. You know that it's an important question here. Write a short note on Yum. The Yum was a military post. Yum was a military post established by the Genghis Khan. There is a Yum was a military post and established by the Genghis Khan. During the Mongol Empire, such a post were created at a distance of 25 miles. That's important here. The create at the distance of 25 miles, and at this post, cavaliers and the messenger were appointed, and horses were placed at their disposal. That's important here. The messenger and there is a cavaliers, there is a appointed, and the horses were placed at their disposal. And these cavaliers used to be carry officially record from one place to another. The cavalier used to be carry official record from one place to another. Each cavalier was required to tie well with their neck of his horse. Cavalier was required to be tied well with the neck of his horses. Whenever a message used to be reached near a post, the messenger present in the post on listening their rings of the bells so tied with the neck of the horse used to be get ready along with the horse to be leave for the next destinations. You know that is important. The rich or near a post, the messenger present at the post. The messenger present of the post and listen the ring of the bell. So they start with the neck of the horse and used to get ready along with the horse to be leave for the next stations here. The young proper's arrangement were also made for the travelers with the aim to make their stay secure and comfortable. Their travels were issued officially post known as a passer. This is important here. The yam is a proper arrangement were also made from the travelers with the aim to be make their stay secure and the comfortable. Their travelers were issued officially post now are the passer. And these passes were to three types here: gold, silver, and iron. That's important. These passes were of three types: gold, silver, and iron.
and travellers had to tie these passes is pieces on their forehead. The travellers were provided facilities as every yam according to this is a passes here. The facility of every yam according to this passes here. The institution provided very successfully for the Mongol administration here. The institutions proved very successful for the Mongol administration here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। ययावर साम्राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे समक्ष देखा जाए तो जो कि 11th कक्षा के लिए हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये अगला क्वेश्चन जो है और भी महत्व रखता है। यहाँ क्वेश्चन साफ है कि रतालू पर आपने एक संक्षिप्त नोट लिखना है। ये हिंदी है, लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसे यम कहते हैं। आखिर रतालू यम जो है वो किन चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण थी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रतालू पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। रतालू होती क्या थी, चंगेज़ खान ने इसको किस प्रकार स्टेबलेट किया, चंगेज़ खान ने इसको क्यों बनाया, बहुत से मन में क्वेश्चन है। लेकिन सबसे प्रथम बात तो ये है कि आपको ये समझना होगा कि रतालू या यम क्या होता है। तो मैं एक साफ शब्दों में बता दूं कि यम जो है एक ऐसे सैन्य चौकी को कहती हैं, जानी सैन्य चौकी जहाँ पर सैनिक को जो है रहने के लिए बनाई गई थी, जो सुरक्षा के मुहैया को देख के बनाया गया था, जिसे चंगेज़ खान ने स्थापित किया था। यानी देखा जाए तो यम का जो एक चौकी थी जिसको चंगेज़ खान ने बनाई थी, तो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंगोल साम्राज्य के दौरान ऐसी जो है पोस्ट 25 मील की दूरी पे बनाई जाती थी। यानी देखा जाए तो 25 माइल की दूरी पे बनाना ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि वहाँ पर संरक्षित किया जा सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। चंगेज़ खान ने यहाँ पर इंटेलिजेंसी की बात दिखाई कि कहते हैं 25 किलोमीटर दूरी पर जो है एक सैन्य चौकी बनाया, क्योंकि यात्रियों को सुरक्षा करना काफ़ी महत्वपूर्ण दायित्व रहता है। और इन पदों पर घुड़सवारों और दूतों की नियुक्ति की जाता था, जहाँ से संदेश उस तक पहुँचना बहुत ही आसान हो जाता था। यानी इन पदों पर घुड़सवारों और दूतों को नियुक्ति किया जाता था और उसके निपटने में घोड़े रखे जाते थे। यानी निपटाने के लिए घोड़े रखे जाते थे कि घोड़ा जो है काफ़ी स्पीड से जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। यानी 25 मील की दूरी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ये घुड़सवार सरकारी अभिलेखों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। यानी कोई भी मैसेज होती थी, इंफॉर्मेशन होती थी, ये घुड़सवार जो है एक चौकी से दूसरी चौकी तक पहुंचाते थे और दूसरी चौकी से तीसरी चौकी तक पहुंचता था। इस प्रकार राजा के पास जो है बहुत महत्वपूर्ण समय काल में जो है संदेश राजा तक पहुंच जाती थी। तो चंगेज़ खान ने इसी उद्देश्य से इन चौकियों का जो है निर्माण करवाया था। प्रत्येक घुड़सवार को अपने घोड़े गले में एक घंटी बांधना आवश्यक था। इससे पता लग जाती थी कि संदेश आ रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक घुड़सवारों को अपने घोड़े के गले में एक घंटी बांधने की आवश्यकता होती थी। जब भी कोई संदेश की चौकी के पास पहुंचता था तो घोड़े गले में घंटी की आवाज़ सुनकर चौकी पर मौजूद दूत घोड़े सहित अगली मंजिल के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो जाता। तो देखिए घोड़े पे के जो है गले में घंटी बांधने का सबसे महत्वपूर्ण था ये बात कि संदेश पहुंचने में राजा तक कोई देरी न हो। यानी जैसे ही घंटी की आवाज़ वहाँ के चौकी पर कोई सुनता, फटाक से दूसरे घोड़े को तैयार कर देता और दूसरे संदेश वाहक को तैयार कर देता अगले चौकी के लिए। तो इससे जो है समय रहते कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है राजा तक बहुत आसानी से पहुंच जाती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चंगेज़ खान ने प्रणाली का जो है उजागर किया, जो कि महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो यम में यात्रियों के लिए उचित व्यवस्था भी की गई थी कि जो यात्री थक के आते थे वो यहाँ पर विश्राम करते थे, जलपान करते थे और हर तरह के जो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध थी। उनके प्रवास को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के उद्देश्य से यात्रियों को जो है अधिक पास जारी किए गए थे, जिन्हें फैज़ा के नाम से भी जाना जाता था। यानी वहाँ पर वही व्यक्ति इन सारी सुख सुविधाओं का आराम ले सकते थे जो कि फौजा बनवा रखे हो। फौजा का मतलब होता है एक तरह का पास, यानी पास जो है बनवाना ज़रूरी होता था इन चौकियों पर रहने के लिए, वहाँ पर अपना समय व्यतीत करने के लिए और सारे फैसिलिटी को जो है यूज़ करने के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रहती है। ये पास 3 प्रकार के होते थे। यानी जो ये पास बनाए जाते थे, फौजा बनाए जाते थे, वो 3 प्रकार के होते थे। एक सोना, एक चांदी और एक लोहे।
यानी ये 3 पास होते थे, सोना, चांदी और लोहे। यात्रियों के इन पासों यानी फौजों को अपने माथे पर बांधना पड़ता था। यानी जो यात्री होते थे ये फौजा को जो है यानी पास को अपने सर पे बांधने की ज़रूरत पड़ती थी, और इस पासे के अनुसार यात्रियों को हर समय यम पर सुविधाएं प्रदान की जाती थी। यानी जिसके पास ये पास रहता उसी प्रकार की जो है उसको सेवा दी जाती, और यह संस्था मंगोल प्रशासन के लिए बहुत सफल साबित हुई। यानी यहाँ पर देखा जाए तो पास का मतलब तो पास होता है, लेकिन जो सोना है, चांदी है, लोहा है, इन पासों का भी अपना एक महत्व होता था। सोने का पास होती थी उनके पास जो बहुत रईस होते थे, जो बड़े घराने से संबंध होते थे। चांदी होते थे मिडिल क्लास के लोग जो कुछ हद तक अमीर थे, और लोहे का जो होता था गरीब वर्गों के लिए होती थी। तो इससे ये बात साबित होती है कि उस समय इन पासों के अंतर्गत उनको उसी प्रकार की जो है सेवा प्रदान की जाती थी। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। तो यह समझ में आ गया होगा आपको कि यम क्या है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से रहता है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। शेयर कीजिए, त्रिपाण सेंटर आपके लिए बहुत कुछ करेगा, सिर्फ शेयर करने की देर है, ठीक है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण रहता है कि वीडियो जब भी देखिए पूरा देखिए, सही से देखिए, स्किप करके वीडियो ना देखिए, नहीं तो बहुत से बातें जो है आपके अधूरे रह जाएंगी, और इसके लिए त्रिपाण सेंटर जिम्मेवार नहीं है। ये गलती आप स्वयं करते हो तो ये गलती आपकी होती है। कभी वीडियो देखिए, पूरा देखिए जो समझ में रहे, ठीक है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जनरल सी बात दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देता है समझने के लिए। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी को सब्सक्राइब करके मेरे मोबाइल में सेव कीजिए।